Hello children, welcome back to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. In our previous class, we learned how to find the solution of a pair of linear equations in two variables by substitution method, which is an algebraic method to find the solution. We did some examples in our previous class. Today we will be doing exercise 3.3 questions 1 and 2 based on this method. Here is the first question. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. Here we have two equations and let us number these equations as 1 and 2. Now just recall how we start this solving part. First we identify the simple equation out of these two equations. आप देखेंगे ये second equation ये easy लग रही है. माइनस वाई को अगर हम RHS में ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और x की एक वैल्यू हमें मिल जाएगी y की टर्म्स में. तो हम शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से. सो फर्स्ट वी एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल. वी बिगिन द सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2. वी गेट x equal to 4 plus y. Let us number it as equation 3. ठीक है, समझ में आया आपको? अब ये जो x का एक्सप्रेशन है इसे हम रखेंगे इक्वेशन 1 में. सो सब्स्टिट्यूटिंग, और क्योंकि हम बार बार सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए इसका मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम equation 3 in equation 1, we get x plus y equal to 14 is the first equation. x की जगह अब हम रखने वाले हैं 4 plus y equal to 14. आप देखिए इस x की जगह हमने रख दिया है ये 4 plus y. अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 4 plus 2y. y plus y will be 2y equal to 14. Now just simplify it. We take the next page. We have the last expression 4 plus 2y equal to 14. This gives us 2y equal to 14 minus 4 or 2y equal to 10, or we can say y equal to 10 upon 2. यहाँ पर कोई confusion नहीं होनी चाहिए. Some students write it as 2 upon 10. तो ये कोई confusion ना रखें यहाँ पर. 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये RHS में जाएगा तो डिवीजन में ये 2 आएगा. सो इट विल बी 10 अपॉन 2 एंड देन y इक्वल टू 5. ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और हम इस y की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. सो वी राइट हियर अगेन सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 3, we get x equal to, it is 4 plus y and x equal to 4 plus 5. This is equal to 9. So the solution is x equal to 9 and y equal to 5. This is the final solution. Okay, it's easy. Next we have second part, s minus t equal to 3 and s by 3 plus t by 2 equal to 6. ये तो हो गई इक्वेशन 1, पर ये सेकेंड इक्वेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो पहले हम इसका एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं और फिर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. अब कैसे सिंप्लीफाई करें? आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर्स में 3 और 2 हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, इट विल बी 6 और हम इस पूरी इक्वेशन को ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका सिंपल फॉर्म हमें मिल जाएगा. सो फर्स्ट वी राइट सॉल्यूशन. फर्स्ट वी simplify equation
by multiplying by LCM of 3, 2, that is 6. Okay. We get S upon 3 into 6 plus T upon 2 into 6 equal to 6 into 6. LHS और RHS सभी टर्म्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. आप देखिए क्या मिलता है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. So we have 2S plus 3T equal to 6 6 ज़ा 36. Let it be equation number 3. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, ये फर्स्ट वन और ये थर्ड वन. अब आप इनमें से देखिए कौन सी इक्वेशन इजी है और कौन सी सूटेबल है हमारे लिए. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन लग रही है. यहाँ से हम s की वैल्यू एक निकाल लेंगे t की टर्म्स में और उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो फर्स्ट वी राइट अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट s equal to 3 plus t. This be the fourth expression. ठीक है, इसको हम s की जगह रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. So we write here substituting the value of s from equation 4 in equation 3. Here this is equation number 3. We get, what do we get? Let us move towards the next page. We have the equation 2s plus 3t equal to 36 and 2 into, in place of s we will be keeping 3 plus t. So 3 plus t plus 3t equal to 36. Simplify, 2 3 is 6, 2t plus 3t equal to 36. This gives us 6 plus 5t equal to 36. 5t equal to 36 minus 6, it will be 30, and this will give us t equal to 30 upon 5 और t is equal to 6. ये हमें मिल गई t की वैल्यू. Now putting this value of t in equation number 4. ठीक है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर हम t की वैल्यू रखेंगे तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी. So we write here putting the value of t in equation number 4, we get s equal to 3 plus t. This gives us 3 plus the value of t is 6. So it is equal to 9. S is equal to 9. And so the solution is s equal to 9 and t is equal to 6. And this is the final solution. Okay, we move towards the next part. This is the pair of equations 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9. This one looks a simple equation, and let us number the equations 1 and 2. Now from equation 1 we get 3x minus y equal to 3. अब आप देखिए ये y जो है माइनस में है, इसको अगर हम RHS में ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा. Let us do this. 3x equal to 3 plus y. अब या तो हम 3 को यहाँ डिवीजन में ले जाएं और x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, या हम कर सकते हैं इस 3 को यहाँ ले आएं माइनस में और y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करें. Let us do this one. 3x minus 3 equal to y.
ऐसा करने से हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं मिल रहा है और ये एक ईजी एक्सप्रेशन रहेगा हमारे लिए. सो दैट इज़ वाई वी हैव एक्सप्रेस्ड नाउ y in terms of x, or we can write y equal to 3x minus 3. Let this be equation number 3. अब हम y का ये एक्सप्रेशन रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. So we write here substituting. तो आप देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू रख रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन में. अभी तक हम x को ही y की टर्म्स में एक्सप्रेस करते आ रहे थे, पर इस क्वेश्चन में हमने y को x की टर्म्स में रखा है. तो ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें हर बार x को ही y की टर्म्स में रखना है. जैसा भी इक्वेशन में दिया है, जो भी सूटेबल लगे, हम दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2, we get 9x minus 3 और y की जगह अब हम लिखने वाले हैं 3x minus 9. It's 3. Equal to 9. देखिए आप, हमने क्या किया, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3. यहाँ पर y की जगह हमने लिख दिया ये एक्सप्रेशन, y इक्वल टू 3x माइनस 3 यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू 9 वहीं से लिया है हमने इक्वेशन 2 से ही. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. वी हैव गॉट इट 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9. अब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे. 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 9. नाउ व्हाट वी सी, 9x माइनस 9x विल बी कैंसल्ड. ये कैंसिल हो गए और हमारे पास बच गया 9 इक्वल टू 9. और ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सो दिस मीन्स the statement is true for all values of x. This means the given pair of equations has infinitely many solutions. Okay, it's clear, I hope. Next we have this equation. Now the numbers are in decimals and don't get afraid of these decimals. अभी आप देखिएगा ये simple हो जाएंगे बिल्कुल. Let us take the first equation. Let this be first and this be second. Now from equation 1 we have 0.2x plus 0.3y equal to 1.3. इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? ये डेसिमल हटाकर नीचे हम 10 लिख देंगे. देखिए आप, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10. ठीक है. अब आप देखिए सबके नीचे 10 आ गया और 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पर 2x प्लस 3y अपॉन 10 हो गया और ये है 13/10. ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे. अगर हम इस 10 को ऊपर ले आएँ LHS में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. करते हैं, देखिए 2x प्लस 3y अपॉन 10 और ये वाला 10 यहाँ ऊपर आ जाएगा. देखिए आप, तो क्या बचा यहाँ पर 13 और अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. हो गई इजी इक्वेशन. आप देखिए हमने क्या किया, पॉइंट्स में थे नंबर्स, इनको डेसिमल को हटा के नीचे हमने 10 ले लिया. 2/10 हो गया, ये 3/10 हो गया, ये 13/10 हो गया. अब 10 और 10 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13.
आप देखिए डेसिमल्स हट गए हैं तीनों ही नंबर्स में से। और सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट अस राइट इट डायरेक्टली नाउ। सिमिलरली equation 2 can be simplified as, बताइए कैसे लिखेंगे हम? बिल्कुल, we will write it as 4x plus 5y equal to 23। इसमें भी हम डेसिमल्स रिमूव कर देंगे और ये हो गया हमारे पास। लेट अस नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3 एंड दिस बी इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब हम ये नई इक्वेशंस को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। वी हैव द इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दिस इज द थर्ड वन, एंड वी हैव 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी इजी है, नंबर्स छोटे हैं, तो हम ये इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, यहाँ पर सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये 2 भी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वी विल गेट 13 माइनस 3y अपॉन 2। Let this be equation number 5. Now replace this x by this expression. We write substituting the value of x from equation 5 in equation number 4, we get 4x है तो x की जगह हम लिखने वाले हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2। आगे है हमारे पास प्लस 5y। देखिए इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन से हम चल रहे हैं, इक्वल टू 23। आई होप यू आर कनेक्टिंग with the solution very well. Now this 2 will cancel this number 4 by 2. 2 2s are 4. Simplify 2 into 13, it's 26. 2 3s are 6y plus 5y equal to 23. ठीक है, अगर हम आगे इसको और सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी y की 26। नाउ माइनस 6 प्लस 5, देखिए दोनों के साथ y है तो दोनों ही सॉल्व होंगे इकट्ठे। माइनस 6 प्लस 5 इट विल बी माइनस 1y, और वी सिंपली राइट इट माइनस y इक्वल टू 23। ठीक है, नाउ माइनस y दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 26। ये 26 जब RHS में जाएगा, अभी ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो गया, और इससे हमें मिलेगा माइनस y इक्वल टू माइनस 3। देखिए आप 23 माइनस 26 इट विल बी माइनस 3। कैंसल दिस माइनस, यू विल गेट y इक्वल टू 3। y की वैल्यू मिल गई हमें, और अब हम इजीली y की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखेंगे इक्वेशन 5 में, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो वी टेक द नेक्स्ट पेज, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 5, we get x equal to, the expression is 13 minus 3y upon 2, 13 minus 3y upon 2, और y की वैल्यू आई है 3, so 13 minus 3 into 3 upon 2, it's 13 minus 9 upon 2, 13 minus 9, it's 4 by 2 equal to 2. So the final solution is x equal to 2 and y equal to 3. This is the final answer. I hope it is clear. Next we have one more part, root 2x and root 3y. अब हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ गए हैं
और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखिएगा बहुत सिंपल आंसर मिलने वाला है हमें. अगेन लेट अस नंबर दीज इक्वेशंस 1 and 2. ठीक है. अब फर्स्ट इक्वेशन से x और y को सेपरेट करते हुए x की वैल्यू निकालते हैं हम y की टर्म्स में. सो सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट √2x इक्वल टू -√3y. आप देखिए ये RHS में जाएगा तो 0 माइनस √3y, तो इट विल बी -√3y और x विल बी इक्वल टू -√3 अपॉन √2y. दिस बी द थर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब ये एक्सप्रेशन जो हमने x का निकाल लिया है y की टर्म्स में, इसको इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग this value of y or x in equation number 2, we get, I hope you all are doing along with me. Keep doing the questions along with me. This will be helpful to you. Now, substituting this value of x in equation 2, we get √3 into -√3 upon √2y minus √8y equal to 0. ठीक है. अब ये √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है √3 into √3 क्या होगा. √3 square is 3. This gives us -3 upon √2y minus √8y equal to 0. और अब आप देखिए ये y दोनों में ही कॉमन है तो क्यों ना हम इसे बाहर कॉमन ले लें. टेकिंग आउट y 3/√2 minus √8 इक्वल टू 0. ठीक है. और अब ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करने वाले क्योंकि एंड में ये यहाँ 0 के नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है. 0. So this means that y is equal to 0. This is the first value that we have got. And now we will replace or substitute this value of y in this expression, equation number 3, and we will get the value of x. So we write in the next page. Substituting the value of y in equation number 3, we get x equal to, what is it? -√3 upon √2y. It is the expression and the value of y is 0. अब देखिए y की वैल्यू 0 आई है. आई होप ये क्लियर है कि 0 कैसे आई है. ये जो भी सॉल्व होके आएगा ये एंड में तो 0 के नीचे आ जाएगा डिवीजन में. जब हम इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में डिवीजन में जाएगा और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर तो 0 ही मिलेगा. इसलिए y की वैल्यू 0 आई है और अब हम y की यही वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 ही मिलेगा. So this means that x is also equal to 0 and therefore the final solution is x equal to 0, y equal to 0. Got it? Then we have one more part. Again the two equations are not in their simpler form. So first we will convert them in a simple form and then we will solve it. Let us number these equations as 1 and 2. So first we write simplifying equation 1 by multiplying both sides by what number? Just think about the number which should be multiplied on both sides. It should be the LCM of 2 and 3. नीचे 2 और 3 है तो 2 3 का LCM है 6. तो हम 6 से पूरी इक्वेशन के LHS और RHS दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट 3/2x into 6 minus 5y/3 into 6 equal to -2 into 6. ठीक है. नाउ 2 3 ज़ा 6 ये कैंसिल हो गए. 3 2 ज़ा 6 ये भी कैंसिल हो गए. हमारे पास बचा 9x minus 5 2 ज़ा 10y equal to -12. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. इसी तरह से अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप? सिंप्लीफाइंग equation 2 by multiplying both sides. आप देखिए यहाँ पर भी नीचे 3 2 और 6 है. इनका आप LCM लेंगे तो 6 ही मिलेगा हमें. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट x upon 3 into 6 plus y upon 2 into 6 equal to 13 upon 6 into 6. Okay, I hope it's clear. Next, 3 2s are 2, 3s are cancel these. 6 and 6 will be cancelled. 2x plus 3y equal to 13. ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जिसे हम नंबर 4 कह रहे हैं. तो अब फाइनल इक्वेशंस क्या हैं? ये 3 and 4. Let us take them separately. 9x minus 10y equal to -12. The equations are 9x minus 10y equal to -12. ये हो गई थर्ड इक्वेशन जो हमने लिखी थी. और ये है 2x plus 3y equal to 13. फोर्थ इक्वेशन. ठीक है. अब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे. अभी तक तो हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई ही किया है. अब आप देखिए दोनों में से सिंपल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ से हम x को अलग कर देंगे y से और x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट x इक्वल टू, देखिए 13 तो यहाँ है ही, ये 3y इधर जाके माइनस में हो गया और ये 2 इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा. हमने डायरेक्टली लिख लिया है और आप भी डायरेक्टली लिखने की कोशिश कीजिए. दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 5. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 3. As you can see, ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है? इक्वेशन 4 से ली है ये वैल्यू. तो अब हम इसे वापस इक्वेशन 4 में तो रिप्लेस नहीं करेंगे. जब हमने ये एक्सप्रेशन इक्वेशन 4 से लिया है तो अब ये जो एक्सप्रेशन मिला है हम इसे रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 9 और x की जगह हम लिखने वाले हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12. ये समझ में आया आपको? देखिए इक्वेशन 3 में बस इस x की जगह हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है ये वाला और बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम है. अब आप देखिए ये 2 और 9 कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं तो अब हमें ये मल्टीप्लाई ही करना होगा. 13 इंटू 9 इट्स 117. 9 3s are 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12. अब फिर से अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो नीचे ये 2 है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2. मल्टीप्लाइंग both sides by 2 we get, what do we get? just have a look. अगर हम इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 117 माइनस 27y.
फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -10y को 2 से, तो ये बन जाएगा -20y इक्वल टू -12 इंटू 2, इट विल बी -24। समझ में आया आपको? या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एलसीएम लेंगे अगर हम, तो ये 2 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, और फिर ये जो 2 नीचे डिनोमिनेटर में है, बाद में ये RHS में 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन एनी वे इफ यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब आप देखिए, ये दोनों y की टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी। 117 माइनस 47y इक्वल टू -24, -47y इक्वल टू -24, और अब ये 117 जब RHS में जाएगा तो अभी ये प्लस में है, इसे माइनस का मत सोचिएगा, ये माइनस तो 47 का है, 117 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है। जब ये RHS में जाएगा तो ये हो गया -117। दिस गिव्स अस -47y इक्वल टू 7 and 4 it's 11, 1 carried, 141 will be the sum of these two numbers। यहाँ से हमें y मिलेगा -141 अपॉन -47। ये -47 यहाँ पर नीचे डिवीजन में आ गया। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ये -47 तो +47 होना चाहिए था RHS में आके, नो, यहाँ पर ये -47 मल्टीप्लिकेशन में है, y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो ऐसे के ऐसे ही डिवीजन में जाएगा। अगर ये ऐसे ऐड हो रहा होता, -47 प्लस y होता और यहाँ -141 होता, तब ये नंबर ज़रूर यहाँ जाके -141 + 47 हो जाता। समझ रहे हैं आप? इन दोनों केसेस में फ़र्क समझ रहे हैं आप? यहाँ और यहाँ पे -47 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे का ऐसा पूरा ही विद इट्स माइनस साइन डिवीजन में आएगा, और यहाँ पर ये प्लस में हो रहा है, ऐड हो रहा है y के साथ, तो जब ये जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड इफ यू डिवाइड यू विल गेट इट इक्वल टू 3। 47 3 इट्स 141। y की वैल्यू आ गई, अब हमें x निकालना है, तो y की ये वैल्यू हम रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन नंबर 5। y की वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं, सो वी राइट हियर substituting the value of y in equation number 5, we get x equal to 13 minus 3y upon, let me see what it is, upon 2, ठीक है, और y की वैल्यू आई है 3, so it will become 13 minus 3 into 3, okay, upon 2, 13 minus 9 upon 2, this will give us 4/2 equal to 2, तो इससे आ गई x की वैल्यू 2। Therefore the final answer is x equal to 2 and y equal to 3। ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, तो पहले हमने सिंप्लीफाई किया और फिर हमने सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 2, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24. Now there are these two equations which we have to solve, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. So we begin with writing both the equations. The given equations are (2x plus 3y equal to 11). Let this be the first one, and 2x minus 4y equal to -24. Let this be the second one. Now, first we will select which one is the simpler of these two equations. आप देखेंगे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इजी है, सिंपल है, यहाँ 11 है और यहाँ -24 है, तो फर्स्ट वाली इजी है और उसमें से हम x और y को सेपरेट करते हुए x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो वी बिगिन विद इक्वेशन 1. From equation 1 we get x equal to, we can write it directly now, 11 minus 3y upon 2.
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. आप देखिए 11 है, 3y प्लस में उधर जाके माइनस हो गया और 2 यहाँ पे डिवीजन में आ गया. नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन ऑफ x इन इक्वेशन 2. ये एक्सप्रेशन हमें मिला है इक्वेशन 1 से, तो वापस हम इसे इक्वेशन 1 में ही नहीं रिप्लेस करेंगे, बल्कि अब हम इसे नेक्स्ट इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे हम सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation number 2, we get, let us take equation 2, 2x minus 4y equal to minus 24, और x की जगह अब हम लिख रहे हैं 11 minus 3y upon 2 minus 4y equal to minus 24. 2 से 2 कैंसल्ड, 11 minus 3y minus 4y equal to minus 24. 11 minus 7y हो जाएगा, minus 3 minus 4 it's minus 7 equal to minus 24. This will give us minus 7y equal to minus 24, and this 11, इसका साइन बताइए आप क्या है 11 का? इससे पहले होता है और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस 11 है, और अब ये RHS में जाके हो गया minus 11. देन माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, दोनों ऐड हो जाएंगे. y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 5. सो y इज इक्वल टू 5. ये आ गई y की वैल्यू. अब इस वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे y की जगह, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू. सो वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, सब्सटीट्यूटिंग the value of y in equation number 3, we get x equal to 11 minus 3y upon 2 is the expression. X equal to 11 minus 3 into 5 upon 2. This will give us 11 minus 15 upon 2. This will give us minus 4 upon 2 equal to minus 2. Therefore, x equal to minus 2, and hence the final answer is x equal to minus 2 and y equal to 5. ये तो आई अभी x और y की वैल्यूज़. अब हमें निकालनी है m की वैल्यू, और दिया है y equal to mx plus 3. तो अब हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन पे. Now given y equal to mx plus 3, y की जगह रखेंगे 5, m तो हमें निकालना है, x की जगह आ जाएगा minus 2 plus 3. ये 3 यहाँ प्लस में है, इधर आकर ये हो गया minus 3, और यहाँ बचेगा minus 2m. 5 minus 3 is 2 equal to minus 2m. This will give us 2 upon minus 2 equal to m, और m equal to minus 1. ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू. So this is the solution to question number 2. We have done first and second question of exercise 3.3. In our next class, we will be completing this exercise and do the remaining questions. Till then, practice these questions once again. Goodbye.